Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Country's GDP growth stands at 7.1% in the second quarter of this fiscal. Manufacturing sector expands at 7.4%. Rising for the fifth straight day, Sensex posts nominal gains of 24 points. Nifty adds 18 points. Rupee appreciates 25 paise against the dollar. And Prime Minister Narendra Modi to meet the leaders of BRIC countries on the sideline, the G20 summit in Buenos Aires later today. देश के सकल घरेलू उत्पाद में मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 7.1% की दर से वृद्धि हुई। विनिर्माण क्षेत्र में 7.4% की तेजी हुई दर्ज। शेयर बाजारों में लगातार पांचवें सत्र तेजी। सेंसेक्स मामूली 24 अंक बढ़ा। निफ्टी में 18 अंकों की बढ़त दर्ज हुई। रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे की मजबूती में रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्यूनस आयर्स में G20 शिखर सम्मेलन के इतर ब्रिक्स देशों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। In our top story, India's economy grew at 7.1% in July to September quarter, lowest in 3 quarters. The gross domestic product GDP had grown at 6.3% in the July to September quarter of the last fiscal, according to government data released today. The size of the GDP in the second quarter of 2018-19 is estimated at 33.98 lakh crore rupees as per a statement of the Central Statistic Office. The CSO said that mining and quarrying output has declined 2.4% in the quarter. However, the manufacturing activities expanded at the rate of 7.4% in the same quarter. The construction sector too showed an improvement by recording a growth of 7.8%. The farm sector too grew at a higher rate of 3.8% in the quarter. Puneet, how would you look at the GDP numbers at 7.1% when you compare it to the global growth and when you compare it to the growth of the previous quarter and the previous annual quarter? So Arjun, I think the most important point to note is that at 7.1% GDP growth, though it is a bit below expectations, we were expecting about 7.4%, the truth is that even at 7.1%, we are the fastest growing economy in the world. We are growing faster than China. China grew at 6.5% during Q2. We have grown at 7.1%. So while I would say there is a little bit of disappointment in terms of slightly lower than expected growth, even then I think that the numbers are pretty good. We are still growing strongly at 7%. And I think if you look at the trajectory of growth, because see last year we saw the growth had actually gone down a lot in the first quarter, the first half of calendar year 2017, and then it started picking up. So I think that trend broadly has continued. We have had some slowdown in growth rate this quarter, but another important thing I would really point out here is that two segments of the economy which have done very well even in this quarter are manufacturing and construction sector. These two sectors are very heavy employment generating sectors, and therefore I think strong showing by manufacturing and by construction should really help us going forward. What about the farm sector, which grew at 3.8%? Agriculture has always suffered from low growth in this 1 or 2% growth that we have seen. It has been neglected. Reforms have not taken place. How do you see this 3.8% growth? So this 3.8% growth compares favorably with 2.4% last year in the same quarter. So even in agriculture, although 3.8 looks very low, I think the
compared with last year, this growth is very impressive. However, we must remember that agriculture continues to be a very low-income sector for most of the people. Unfortunately, for India, largest part of our employment workforce is really employed in agricultural sector. About 60% people depend on agriculture for sustenance. Therefore, while 3.8 is better than 2.4 last year, I think we need to do a lot better now. पुनीत, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का जो फिगर आया है वो 12.4% ग्रोथ उसमें रजिस्टर हुई है। और अभी हाल में फिगर्स आए हैं कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज जो है बैंक्स के वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनसे भी एक इंडिकेशन मिलती है कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ है। इनफैक्ट कई बैंक्स ने अभी अपने डिपॉजिट रेट्स बढ़ाए भी हैं और बात हो रही है कि शायद आरबीआई और मेजर्स उठाए लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। तो आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कुछ पिकअप दिखाई दे रहा है जो इम्पोर्टेंट होता है फ्यूचर में ग्रोथ के लिए? बिल्कुल, जो डेटा हमारे सामने अब आ रहा है वो ये सजेस्ट करता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ हद तक स्लो डाउन आ गया था इन 2017, वो पिकअप कर रहे हैं, वो ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। और देखिए, ये सब ना लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमको सजेस्ट करते हैं कि आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रहने की आशा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो जीडीपी नंबर्स हैं या कैपिटल इन्वेस्टमेंट नंबर्स हमारे सामने या इवन जो टैक्स कलेक्शन नंबर्स हैं, वो सब ये दर्शाते हैं कि आने वाले समय में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेहतर होनी चाहिए। स्लो डाउन मुझे नहीं लगता कि यहां से होने का कोई अंदेशा है। हालांकि वर्ल्ड इकोनॉमिक, देखिए, जो मार्जिनल प्रॉब्लम देखते हैं कि 7.4 उम्मीद थी और 7.1% ग्रोथ आती है इकोनॉमी में, तो सबको चिंता होती है कि क्या ऐसा तो नहीं कि रिवर्सल है ग्रोथ ट्रेंड में। मुझे लगता है कि जो विश्व में ट्रेड वॉर्स का माहौल है या एक चिंताएं थी करेंसी को लेकर, एक्सपोर्ट्स को लेकर, वो सब चिंताएं कुछ हद तक उनका असर पड़ा है इस पर, लेकिन दैट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट नंबर इफ यू लुक एट इट। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस कंसर्न्स, इन स्पाइट ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस, इन स्पाइट ऑफ करेंसी अनसर्टेनिटी, वी हैव ग्रोन एट 7.1%। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये जो नंबर्स हैं ये बेहतर होने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे शुरुआत हो सकती है ग्रोथ की। आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है December 5 को, क्या लगता है आपको इन फिगर्स से क्या वो इन्फ्लुएंस होगी? आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स में शायद वो पॉज या कुछ कटौती दें और कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में भी कुछ ढील दें ताकि लिक्विडिटी बढ़े इकोनॉमी में और एज आई सेड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को बढ़ावा मिले? तो सोनू ने अपने एक ही सवाल में कई सवाल उसमें रोल इन कर दिया। आई ट्राई टू आंसर देम। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आरबीआई का जो मेन मैंडेट है वो इन्फ्लेशन फाइटिंग मैंडेट है। ऐसा लगता है कि आरबीआई को ग्रोथ से या एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि देखिए यूएस फेड की जब हम बात करते हैं तो वो ग्रोथ की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। लेकिन भारत में अनफॉर्चुनेटली जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका पूरा ध्यान या पूरा मैंडेट जो है वो इन्फ्लेशन पर फोकस्ड है। इस वजह से आरबीआई अपने आप कभी ग्रोथ को टारगेट नहीं करता या एम्प्लॉयमेंट को टारगेट नहीं करता। हालांकि यदि हम जो भी इन्फ्लेशन का नंबर्स हमारे सामने आए हैं, और मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो सबसे ज्यादा एस्टिमेट्स हम देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी या बड़ी अच्छी एजेंसीज के द्वारा, उनका अनुमान है कि आने वाले 6 महीने में इन्फ्लेशन जो है वो 3% से ऊपर नहीं जाएगा। 3% इज द एस्टिमेट ऑफ इन्फ्लेशन इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो यानी इन्फ्लेशन की तो कोई चिंता का विषय ही नहीं बचा है, पर्टिकुलरली ऑयल प्राइसेस नीचे आने के बाद। शायद ग्रोथ पर ध्यान दे आरबीआई। देखिए, आरबीआई कहता कभी नहीं है ये बात। हालांकि मैं ये मानता हूं कि आरबीआई के पास कोई कारण ही नहीं है अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। काफी सजेशन है इस वक्त की सीआरआर, जिसकी वजह से बैंक्स के वो काफी कैश को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सीआरआर में एक भारी कटौती आ सकती है। इनफैक्ट सम इकोनॉमिस्ट सजेस्ट कि सीआरआर तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज बैंक्स एज इट इज अपनी रिजर्व्स को, लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन करते हैं। तो खैर मुझे लगता है कि सीआरआर में कट आ सकता है। SLR मे बी नॉट, बिकॉज गवर्नमेंट बॉर्डिंग्स भी चाहती है, बैंक्स एज इट इज हैव बीन सेलिंग बॉन्ड्स वेरी हेवीली लेटली। तो मुझे लगता है कि सीआरआर में डेफिनेटली कट आ सकता है। इंटरेस्ट रेट्स आई एम क्वाइट क्लियर कि नहीं बढ़ सकते आने वाले एटलीस्ट नेक्स्ट पॉलिसी में, 5 दिसंबर की पॉलिसी है। और टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है कि आरबीआई जो है वो अपना मॉनेटरी स्टांस को ईजिंग, तो वो एक शिफ्ट कर सकते हैं। अभी तक उन्होंने टाइटनिंग के बायस रखा है, आने वाले दिनों में शायद वो ये कह सकते हैं कि हम लिक्विडिटी को ईज करेंगे। Puneet, just coming back to the GDP figures, and more importantly on the figures of mining and quarrying output, we're looking at productivity in each sector. In mining and quarrying, we have seen a decline
of 2.4% despite reforms. You've seen electronic bids being made so that there is proper price discovery and income for the government and, of course, profit for business also. Why has there been a decline in this sector? Arjun, unfortunately, this sector and the numbers that we see in this sector are largely provided by the coal sector, because that is the overarchingly dominant sector in India's mining. The other mining output is not very significant. So, and we know that there have been a lot of issues in coal mining. In fact, there's been a lot of shortage of coal in India because somehow we are not able to transport coal from the mines to the places where it is used. And in fact, India's coal imports have gone up significantly in last few months. So, while there is increasing demand for coal and energy products, somehow coal production has not been able to keep up with it, despite the reforms that you mentioned. I mean, electronic e-auctions and opening new mines, etc. Of course, there are environmental issues, there are other regulatory, legal issues, which have really held back coal production in India. So it's a matter of concern, because also, again, I would say that mining is a very major employer of manpower. And unfortunately, we are not able to get it. And also the manufacture of capital goods, you require that kind of equipment really to extract and harvest the soil. Exactly. In many economies like Australia, Indonesia, South Africa, Brazil, they really depend on mining as the growth driver. In India, somehow we have not been able to do it so far. Hopefully things will change. एक और जो मेरा सवाल है वो ग्रोथ से जुड़ा हुआ है और आरबीआई से ही जुड़ा हुआ है। उनके जो कैपिटल रिजर्व्स हैं उसको लेकर अभी काफी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि उनके पास एक्सेस कैपिटल है जो उन्हें सरकार को देना चाहिए ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज एक मेजर जो ड्राइवर होता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ का, खासकर एक डेवलपिंग कंट्री, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, जिसमें मेन रोल सरकार का होता है। सो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 7 ट्रिलियन रुपए की राशि है जो सरकार को दे सकती है आरबीआई। इनफैक्ट ये जो एक्ससीए हैं अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने कहा है। आप कहां तक इससे सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि आरबीआई के कैपिटल रिजर्व्स क्या रोल प्ले करते हैं कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में? देखिए, आरबीआई की पहली बात तो समझे हम कि आरबीआई के कैपिटल रिजर्व्स आते कहां से हैं। तो आरबीआई जो करेंसी प्रिंट करती है और जो करेंसी बाजार में एक तरह से आप कह सकते हैं बेचती है जिस वैल्यू पर, उसका जो डिफरेंस होता है वो आरबीआई के कैपिटल रिजर्व्स में जाता है। तो आरबीआई के पास इस वक्त अनुमान है कि 9.7 लाख करोड़ के रिजर्व्स हैं आरबीआई के पास। और वो रिजर्व्स का पर्पस क्या है? वो पर्पस ये है कि यदि कोई क्राइसिस आता है, मॉनेटरी क्राइसिस आता है देश में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना पैसा लिक्विडिटी इंजेक्ट कर सकता है सिस्टम के अंदर, जिससे कि वो कोई भी फ्रीजिंग ऑफ द क्रेडिट मार्केट या फ्रीजिंग ऑफ द मॉनेटरी मार्केट को बचा सके। अब इसके अलग अलग अनुमान है कि कोई भी क्राइसिस में कितना पैसे की जरूरत पड़ सकती है। उसके अलावा देखिए, जितना पैसा है वो तो फालतू है एक प्रकार से। तो एक अनुमान है कि आरबीआई को जरूरत है करीब 2.5 लाख करोड़ से 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ रुपए का रिजर्व अगर उनके पास हो तो ये सफिशिएंट है। एंड दैट इज अ काइंड ऑफ परसेंटेज वाइज अगर हम देखें उनके बैलेंस शीट के साइज में, तो यही रिजर्व जो है वो जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज में जो सेंट्रल बैंक है वो रखते हैं। तो इस अनुमान से 7 लाख करोड़ रुपया सरप्लस है आरबीआई के पास, जो वो ट्रांसफर ऑन बुक्स कर सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि वो 7 लाख करोड़ ट्रांसफर करने की कोई जरूरत है सरकार को। इवन इफ द गवर्नमेंट वांट्स सम मनी, वो आरबीआई से कुछ पैसा, देखिए आरबीआई कुछ पैसा को एज ए डिविडेंड देती है सरकार को, करीब 60,000 से 70,000 करोड़ रुपया साल का आरबीआई एज डिविडेंड पे करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ऐसी बातचीत चल रही है कि शायद सरकार जो है वो 1 लाख से 2 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक से चाहती है, जो वो बैंक्स के जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है सरकार को अपने खर्चे के लिए नहीं चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स को कैपिटलाइज करने के लिए उस पैसे की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम इसका मिडवे जो है 7 लाख करोड़ की डेफिनेटली जरूरत नहीं है, करीब 1 से 2 लाख करोड़ का अनुमान है जो बैंक्स को चाहिए। दिस कुड बी प्रोवाइडेड एज कैपिटल बाय द आरबीआई। Well, we're heading for a short commercial break, so please stay tuned. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया, छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। रुक करते हैं शेयर बाजारों का। शेयर बाजारों में लगातार 5वें सत्र बढ़त का रुख बना रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 24 अंकों की मामूली तेजी से 36,194 पर बंद हुआ। दिन के उच्चतम स्तर पर सेंसेक्स 219 अंकों की तेजी पर था और दिन के न्यूनतम स्तर पर 87 अंकों की गिरावट पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18 अंक बढ़कर 10,877 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.6% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% की तेजी दर्ज हुई। And the stock markets rising for the fifth straight day. The Sensex at the Bombay Stock Exchange ended with a nominal gain of 24 points to close at 36,194 today. The Sensex rose 219 points at the day's high and had fallen 87 points at the day's low. The Nifty at the National Stock Exchange moved up 18 points to 10,877. In the broader market, the BSE Mid Cap Index climbed 0.6% and the Small Cap Index rose 0.5%. Market breadth was almost even between gainers and losers. Among sectoral indices, the Realty Index jumped 2%, the Healthcare Index climbed 1.8%, IT Index added 1%, Auto and Tech indices rose 0.7% each. Among declining indices, the Telecom Index lost 1.5%, Oil and Gas Index at 1%, BankX and Metal indices dropped 0.5% each. Among Sensex gainers, Yes Bank jumped 5.7%, Wipro surged 3.1%, Mahindra and Mahindra rose 2.2%, Sun Pharma and Kotak Mahindra Bank added 1.8% each, and Maruti Suzuki advanced 1.5%. But ICICI Bank dropped 2%, IndusInd Bank, NTPC and Vedanta lost 1.7% each, Bharti Airtel and Coal India fell 1% each. Auto major Tata Motors fell 3%, Reliance Communications jumped 12% after the Supreme Court today ordered the Department of Telecommunications to grant no objection to Reliance Communications for spectrum trading within 7 days. Puneet, how would you view the developments in the market? Do you think that the Sensex and the Nifty have now topped up as opposed to bottoming out? So Arjun, the news for the emerging markets of India is a part of the emerging markets space, has been very positive over the last couple of weeks. In fact, India and other emerging market currencies were suffering a lot because of high interest rates in US and the fear that the US Fed will continue to raise rates. And there were fears, of course, trade wars, etc. Lately, what we have seen is that mood has changed. There's a lot more money being shifted from developed markets like the US to emerging markets. We've seen the effect in terms of FII buying in India. We've also seen a reflection of that in strengthening currency. So rupee has really appreciated and beyond $70 rupees to a dollar. So I think therefore the global macro picture has improved significantly for us. And not to forget the fact that oil prices have been very low now, and that is really contributing to the positive sentiment for India. So clearly the macro picture has improved for India. We have seen lot more FII buying here by foreign investors, and therefore I think the markets are structurally stronger today than they were, let's say, two weeks back. Of course, we have a lot of headwinds going forward because we have a lot of events next week. RBI meeting is there, then the OPEC meeting is there, then US Fed meeting is there, then election results come in, then we have general elections next year. So my own sense is that we are not heading lower significantly from here, but we might see a lot of volatility, within the 500-point range. So one could say possibly that 11,000 on the upside in Nifty and 10,000 on the downside could be the broad range where the market might stay for the next 7-8 months. And within that space, within that volatility, we might find pockets of strength, pockets of weakness. That's my estimate really. पुनीत, अगर हम नवंबर को देखें, जैसे आपने कहा कि एफआईआई फ्लोज वापस आ गए हैं बाजार में और नवंबर डेरिवेटिव्स एक्सपायरी जो है वो बेस्ट रहा है मार्च 2016 के बाद. एंड इंटरेस्टिंगली मॉर्गन स्टैनले ने जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनका डबल अपग्रेड किया है फ्रॉम अंडरवेट टू ओवरवेट, और खास उन्होंने मेंशन किया है इंडिया, भारत का और इंडोनेशिया का, और उन्होंने यूएस मार्केट्स को अंडरवेट कर दिया है. सो आपको क्या लगता है अभी क्या इमर्जिंग मार्केट्स में अब ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं, यहाँ ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स बेटर हैं, और आपको लगता है कि यहाँ जो फंड फ्लोज हैं वो भी बेटर होंगे? डेफिनेटली सोनू, देखिए डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बेटर होते हैं बिकॉज दे आर स्मॉलर इकोनॉमीज इन द सेंस कंपेयर्ड विद डेवलप्ड मार्केट्स, सो ग्रोथ रेट्स आर बेटर. लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि छोटी इकोनॉमीज हैं, तो उसका नेगेटिव असर भी जो मैक्रो सिचुएशन होती है उसका पड़ता है.
मॉर्गन स्टैनले ने, और इनफैक्ट नॉट ओनली मॉर्गन स्टैनले, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं विदेशी, अब सभी का जो रुख है वो इमर्जिंग मार्केट की तरफ बदल रहा है और वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो हमने कई अपग्रेड्स देखे हैं इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एफआईआईज की बाइंग भारत में चलती रहेगी। और यही कारण है कि मुझे लगता है बाजार में स्टेबिलिटी का माहौल रहेगा। हालांकि जैसे हमने कहा कि वॉलेटाइल रहेगा एक पर्टिकुलर रेंज में, पर बहुत ज्यादा यहां से कोई बाजारों में खतरा हो या बहुत शार्प फॉल हो, ऐसा भी कोई नहीं लगता है। तो आपको लगता है कि अभी अच्छा समय है बाजार में इन्वेस्ट करने का? कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे आपको प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं? जो ऑयल और रुपी में चेंजेस आए हैं, जो ऑयल नीचे आया है और रुपए में मजबूती आई है, उसको देखते हुए क्या समीकरण चेंज हुए हैं सेक्टर्स में? देखिए, तो निवेश के लिए तो मैं ये कहूंगा कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं अगले 5-6 महीने तक उस अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टैगर करके, यानी एक तरह से सिस्टमेटिक तरीके से इकट्ठे वो सारा पैसा ना डालें, वो क्योंकि हमने जैसे बात करी वॉलेटिलिटी आ सकती है बाजारों में, तो वो आने वाले 5-6 महीनों तक स्टैगर करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। डेफिनेटली उसके बाद हमें लगता है कि बाजारों में अच्छी एक बढ़त आ सकती है, क्योंकि जो मैक्रो सिचुएशन है, जो टैक्स कलेक्शंस हैं या जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पिकअप कर रही है। इनफैक्ट अर्निंग्स जो एस्टिमेट है वो भी अच्छे बेहतर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कई क्षेत्र हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग की हम बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं, आईटी सेक्टर है, मुझे लगता है जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर्स हैं, स्टील है, सीमेंट है, यहां भी हम आने वाले दिनों में अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। अभी आपने रुपया मेंशन किया था, देख लेते हैं रुपए का आज कैसा प्रदर्शन रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 25 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत 69 रुपए 59 पैसे दर्ज हुई। ये जो 70 रुपीज के नीचे आ गया है रुपए का स्तर, ये कितना इम्पोर्टेंट है बाजार के सेंटिमेंट के लिए? क्या ये कुछ स्ट्रेंथ दर्शा रहा है? देखिए, करेंसी की स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है विदेशी निवेशक के लिए। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लेवल पे स्टेबल हो, चाहे 75 रुपए पे हो, चाहे 65 पर हो, लेकिन एक फेयर वैल्यू जो है रुपये की, अगर 69-70 के आसपास रहता है ये, और वहां पर वो एक प्रिडिक्टेबिलिटी है कि आने वाले 6 महीने या 1 साल तक वो पैसा वहीं स्टेबल रहेगा, तो उस ऐसे माहौल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है। यदि रुपये बहुत फ्लक्चुएट करता है, बहुत वाइल्डली फ्लक्चुएट करता है, तो निवेशक ऐसे माहौल में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो रुपये की लेवल भी इंपॉर्टेंट है। 70 रुपीज आई थिंक इज अ फेयर वैल्यू फॉर रुपी, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि वो स्टेबल है उस लेवल पर, वो भी हमें हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट्स को लाने में। चर्चा को विस्तार देंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पहले एक नजर डाल लेते हैं। एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% की तेजी पर बंद हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% की बढ़त में रहे, लेकिन जापान का निक्केई सूचकांक 0.4% के नुकसान में रहा और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.8% की गिरावट पर बंद हुआ। आर्थिक खबरों में एक आधिकारिक सर्वेक्षण के अनुसार चीन के सेवाओं से जुड़े उद्योग में वृद्धि की गति नवंबर में लगातार दूसरे महीने धीमी पड़ गई। आज जारी आधिकारिक गैर विनिर्माण परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के आंकड़ों से पता लगा कि अक्टूबर के 53.9 से कम होकर नवंबर में ये 53.4 पर आ गई। चीन के विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि 2 साल से अधिक के दौरान नवंबर में पहली बार थम गई। आधिकारिक परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अक्टूबर के 50.2 से कम होकर नवंबर में केवल 50 रह गया। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां पर मंदी का रुख था। लंदन का फुटसी 0.6% के नुकसान पर था। फ्रांस का कैक 0.5% और जर्मनी का डैक्स 0.7% की गिरावट पर थे। पुनीत, चीन पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे? वहां जो एक बहुत ब्रीफ सी टिप्पणी, जो हम स्लो डाउन देख रहे हैं। देखिए, जो नंबर्स हैं वो साफ दर्शाते हैं कि चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, उसकी जो गति है वो कम हो रही है और चाइना के लिए काफी बड़ा चैलेंज होगा आने वाले समय में कि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन कर सके। Well, now let's have a look at the U.S. Stock market. Technology shares weighed the most on all three major U.S. stock indexes, with the S&P 500 technology sector slipping 1%. Interest rate sensitive financials dropped 0.8%. A U.S. 10-year Treasury yield continued to fall following the release of the Fed minutes. Among large U.S. banks, shares of JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, and Morgan Stanley ended the session down between 0.8 and 1.8%. Dow Jones Industrial Average fell 28 points, 0.1% went at 25,330. The S&P 500 lost 6 points, 0.2% to close at 2,738. And the Nasdaq Composite dropped 19 points to 7,273. Just very briefly, how do you see the bond market in the U.S., which has been a major inducement
for FIIs. Absolutely. So we have seen the yields fall to 3%, which is kind of the red mark, for investors. Below 3%, it will favor emerging markets, and above 3%, it favors the developed markets. So I think this is good for emerging markets if the yields fall. लेते अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्यूनस आयर्स में G20 शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज बाद में G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा से द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय है न्यायपूर्ण और सतत विकास के लिए आम सहमति बनाना। विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि प्रधानमंत्री सम्मेलन के पहले सत्र में अपने विचार रखेंगे, जिसका विषय है जनता सर्वोपरि। संबोधन में श्री मोदी तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से पड़ने वाले प्रभावों, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे कौशल भारत, मुद्रा योजना और डिजिटल इंडिया और GST का विशेष रूप से जिक्र करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा था कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत ऐसे बहुपक्षीय ढांचे की जरूरत पर जोर देगा जिसमें तत्कालीन परिस्थितियां सही ढंग से झलकती हों। क्या कहेंगे आप, आपका ब्रीफ कमेंट कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ऐसे माहौल में जहां प्रोटेक्शनिज्म पर जोर दिया जा रहा है? देखिए, G20 की बहुत बड़ी भूमिका रहती है इंटरनेशनल फोरम में, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री का वहां पर जो पार्टिसिपेशन है वो रियली इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। Well, now let's have a look at the oil market. Both international oil benchmarks, North Sea Brent, US crude, have had the weakest month for more than 10 years in November, losing more than 20% as global supply has outstripped demand. So Brent fell 55 cents to trade at $58.96 per barrel. US crude dropped 75 cents to $50.70 a barrel. Briefly tell us about the declining oil prices, supply outstripping demand. So clearly the fundamentals of the oil market where supply has been surging, demand is of course impaired by rising prices. I think that is catching up. We are seeing weak oil prices and I think it will kind of stay in this range. लेते अगली खबर, दिल्ली सराफा बाजार में सोना 65 रुपए सस्ता होकर 31,475 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। कारोबारियों के अनुसार रुपए में मजबूती और वैश्विक बाजार में मांग कमजोर रहने से सोने की कीमतों में गिरावट आई। आभूषण निर्माताओं और खुदरा व्यापारियों की मांग कम हो जाने से भी कीमतों पर दबाव बना रहा। उधर चांदी की मांग औद्योगिक इकाइयों और सिक्के बनाने वालों में कमजोर रहने से चांदी 85 रुपए की गिरावट से 37,075 रुपए प्रति किलो पर आ गई। चांदी के सिक्कों का खरीद मूल्य 72,000 रुपए प्रति 100 सिक्के पर स्थिर रहा। क्या कहेंगे आप, सोने का जो एक आकर्षण था एज अ सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टमेंट, वो अब कम होता जा रहा है? डेफिनेटली आई थिंक फाइनेंशियल एसेट्स आर गेनिंग ग्राउंड और जो फिजिकल एसेट है जैसे गोल्ड, उनका अट्रैक्शन जो है वो कम हो गया। पर आपको लगता है कि अगर ये ट्रेड वॉर जोर पकड़ता है तो शायद सोने की तरफ? देखिए, हमने देखा है कि इसका बहुत असर नहीं पड़ा है गोल्ड प्राइसेस पे, तो मुझे लगता है ये यही स्टेबल रहेगा इसके आसपास। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। पुनीत, आप आए, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनो। And before we close, a reminder of the headlines. Country's GDP growth stands at 7.1% in the second quarter of this fiscal. Manufacturing sector expands at 7.4%, rising for the fifth straight day. Sensex posts nominal gains of 24 points. Nifty adds 18 points. Rupee appreciates 25 paise against the US dollar. And Prime Minister Narendra Modi to meet the leaders of BRICS countries on the sidelines of G20 summit in Buenos Aires later today. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.